Hello everyone. So today we will start the first chapter of class ninth, and the name of chapter is Matter in Our Surrounding. Okay? Matter in our surrounding. As you all see, different type of material around you, even different type of substance around you. For example, this marker, this whiteboard, your copy, pen, pencil, desk, chair, door, air, even water, and our body also is made up of some kind of material. Clear? So all those materials is called matter. Okay? So what is matter? Matter is any substance which occupies space. Okay? So what is matter? Matter is any substance which occupy space. What that mean? Which occupy space? It simply means if you take your marker and put it on a table or your hand, it's cover some area, right? Similarly, if you take your book or your notebook or any diary and put on somewhere, it's cover some space, right? So it means it has some volume and some mass also. So in another words, we can say that any substance which have volume and has mass is called matter. Simple. Or any substance which have volume and mass is called matter. Now what is matter made up of? मैटर किस चीज का बना है? किसी चीज का तो बना होगा, उसे हम क्या कहते हैं? So metals are made up of tiny particles, and those tiny particles are either visible or maybe invisible to us. Clear? So we cannot identify the size of particle through our naked eyes. So matter is made up of tiny particles. It is made up of tiny particles. Clear? According to Indian philosophy, it is said that our body is also made up of 5 elements, that is पंच महाभूतास. हम लोग जब छोटे थे तो हमारे पापा बताते थे कि हमारी जो बॉडी है वो बनी है किससे? मिट्टी से. क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीर. पंच
तत्व से बना शरीर। ठीक है, तो ये इंडियन फिलॉसफी में पहले ही बता दिया गया था। नाउ व्हाट इज दीज एलिमेंट्स? ये 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? क्षितिज मीन्स अर्थ, ठीक है, व्हाट वी कॉल सॉइल, जल मीन्स वाटर, पावक मीन्स फायर, FIRE, Gagan means space, and Samira means air. ठीक, so these 5 elements are responsible for our body. Clear? And not only our body, everything in this universe is made up of only these elements. Clear? Now as we already discussed that the matters are made up of tiny particles. So these particles have certain characteristics also, right? So based on those characteristics, matters are classified into 3 basic types, but later on 2 types are also identified. So total 5 state, there are 5 states of matter. Clear? And these are solid, liquid, gaseous, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन स्टेट। ठीक है, सो मैटर कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप के हैं। या मैटर जो है 5 स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, स्टेट मीन्स फॉर्म। देयर आर 5 state of matter. First one is solid, second one is liquid, third one is gas, fourth plasma, and the fifth one is Bose-Einstein condense matter. So ये 5 टाइप्स हैं मैटर के, या 5 स्टेट्स हैं कह लो। And all these 5 states of matter can be interchangeable. Okay, now in our class we will going to deal with only these 3 types of matter. Okay, now we will see the characteristic of particles of matter based on these 3 states of matter. ठीक है, okay, so we will see the characteristics of particles of matter. Characteristic of particles of matter. So as we all know, matter is made up of particles, and all particles have certain characteristics,
and these characteristics are defined as size of particle. So as size of particles, so as I said, there are three basic states: solid, liquid and gas. So in solid, liquid and gas. Clear? I'm writing in short here. The size of particle is more in solid, ठीक है, लार्ज, मोर नहीं, लार्ज पार्टिकल होते हैं सॉलिड के. लिक्विड के सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से स्मॉल होते हैं, स्मॉलर देन सॉलिड. एंड गैसेस के लिक्विड से भी स्मॉलर देन लिक्विड. लिक्विड मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स से. क्लियर? दूसरा, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअसली मूविंग. तो पार्टिकल्स कंटिन्यू मूव. और जो स्पीड होगी वो सॉलिड में लीस्ट होगी. ठीक है? लिक्विड में मोर देन सॉलिड और गैसेस में मोर देन लिक्विड. Force of attraction. Particles have attraction force. Okay. Force of attraction particles के बीच में होगा. And it is, सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होगा? सॉलिड के बीच में. ठीक है, हाईएस्ट होगा इसमें. less than solid and again less than liquid. ठीक है? अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी से हमारा आ जाएगा साइज, सॉरी शेप. तो शेप में क्या हो जाएगा? सॉलिड का रिजिड शेप होगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा है, इस वजह से रिजिड शेप होता है. रिजिड शेप है इसीलिए लेस फ्लेक्सिबल है. लेस फ्लेक्सिबल है इसलिए इजिली ब्रेकेबल है. ठीक है, आसानी से टूट सकता है. नहीं, लेस फ्लेक्सिबल है इसीलिए इन्हें तोड़ा जा सकता है. रिजिड है तो उन चीज को, जो भी चीज रिजिड होती है उसे हम तोड़ सकते हैं, तो इन्हें ब्रेक किया जा सकता है, ब्रेक एबल है. ठीक है. सिमिलरली लिक्विड में क्या हो जाएगा? शेप क्या होता है? नॉट फिक्स शेप, क्योंकि ये फ्लूइड होता है, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसका शेप ले लेगा. तो नॉट फिक्स्ड शेप. गैस अगेन नॉट फिक्स्ड शेप. ठीक है. तो पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं. ठीक है, इस वजह से पार्टिकल के बीच के जो डिस्टेंस भी है वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है. ठीक. ये फ्लूइड है तो फ्लूइड को हम क्या ब्रेक कर सकते हैं? नहीं कर सकते. ठीक है. और गैसेस में भी अगेन. ठीक. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुछ डिफरेंस है
इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर के बीच में। Now we will see the effect of temperature on the particles of matter. तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के पार्टिकल्स पे, ठीक है। एंड देन वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। or we can deal together these two phenomena factor: effect of temperature and pressure on particles of matter, ठीक है। तो क्या होता है जब भी हम किसी पार्टिकल्स का प्रेशर जो अगर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सॉलिड के केस में अगर हम पार्टिकल का प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो वीक होने लग जाता है, ठीक है। और वो जब वीक होता है तो उसका जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर जाने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, एकदम क्लोजली अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में लेस स्पेस होता है, तो इन मॉलिक्यूल या इन एलिमेंट्स के बीच का जो ये स्पेस होता है ना, ये बहुत ही कम होता है, लेस देन सॉलिड एंड गैसेस। तो ये सॉलिड का केस हो गया, ठीक है। लिक्विड की बात की जाए तो इनके बीच के जो ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो स्पेस होता है ना, वो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के स्पेस से ज्यादा होता है। वहीं गैसेस की बात करें तो ये तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। इसी वजह से इनका बिल्कुल भी शेप जो है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर मैंने बात की जाए तो सॉलिड में कैसा है, हाई है, सॉलिड, लिक्विड और ये गैसेस हो गया, गैस, ठीक है। ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल ऑफ, ठीक है, पी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जब एनर्जी प्रोवाइड करते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है, इस एरो का मतलब है इंक्रीज। जब इंक्रीज करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में क्या होगा, मोशन, मूवमेंट जो होती है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और ये अपने एक दूसरे से दूर दूर जाने लगेंगे। मान लो इतना इतना दूर आ गया, ठीक है, तो इनके बीच का जो ये मूवमेंट है वो क्या है, वो इंक्रीज कर जाएगा। मूवमेंट की रेट जो है वो इंक्रीज कर देगी, ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल के बीच की मूवमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन जब दो सब्सटेंस आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, ठीक है, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होता है और जो पार्टिकल्स के बीच की मूवमेंट होती है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स,
और यही चीज लिक्विड में होता है और गैसेस में भी होता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग प्रेशर को इंक्रीज कर दें और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें तो क्या होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा गैसेस में, ठीक है, डायरेक्टली, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए, ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोल। कोल को हम डायरेक्टली हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर में अगर हम रखें तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में चेंज होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है सब्लिमेशन। क्या कहलाता है, सब्लिमेशन। इसी तरह अगर सॉलिड को हम हाई टेम्परेचर पे करें तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर है। तो ये किस में होता है, लिक्विड में चेंज होता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। सॉरी, वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपर्स के फॉर्म में चेंज होगा ना। हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूजन, ठीक है। और लिक्विड का गैसेस में चेंज होना हाई टेम्परेचर में कहेगा इवेपोरेशन, ठीक। अब अगेन अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, यहां लिख देती हूं, ये है सॉलिड, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, याद रखना, ये है लिक्विड के, और ये गैसेस के, ठीक है। अगर लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और ये जो कन्वर्जन है टेम्परेचर और प्रेशर को अल्टर करके ही किया जाता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन, ठीक। और गैसेस का लिक्विड में चेंज होना वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, वेपर्स का फॉर्मेशन, ठीक है। और गैसेस का लिक्विड में चेंज होना कहता है कंडेंसेशन, ये है कंडेंसेशन, ठीक है। वाटर साइकिल में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों होता है, ठीक है। और गैसेस का सॉलिड में चेंज होना भी सब्लिमेशन कहलाता है, ठीक। तो अगर टेम्परेचर या प्रेशर में हम कुछ चेंज करते हैं तो मैटर की स्टेट में भी चेंज होता है, ठीक। इसी के बेसिस पे हम आगे जो फिनोमेना देखेंगे कि हम लोग गर्मी में कॉटन के कपड़े ही क्यों पहनते हैं, ठीक है, या जो सिलेंडर होता है उसमें गैस हम कैसे फिल कर लेते हैं, ठीक, जबकि गैस का कोई शेप नहीं होता है ना, वो उसे जिस भी कंटेनर में रखोगे वो उसी का शेप ले लेगा, ठीक है, और उसके पार्टिकल्स भी बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसे एक गैस सिलेंडर में हम कैसे फिल कर लेते हैं, ठीक। ये प्रेशर को गैस जो होती है ना उसे हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। तो ये सब हम
नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।